جس نے کچھ کرنا ہے کرے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ چودھری نثار کی سوشل میڈیا کریک ڈاؤن پر لب کشائی، کہتے ہیں فوج اور عدلیہ کی تضییق برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے قانون و آئین کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتخابی عمل میں متنازع فارم 14 کو الیکشن کمیشن نے غائب کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ فارم 17 بھی بدل دیا جائے گا۔ آئندہ انتخابات میں اس تجربے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور چلتے ہیں تو چین کو چلیے، عمر درازی کا خواب پورا کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ سوشل میڈیا کو ضابطۂ کار میں لانا وزارت داخلہ کا کام نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس کام کو اپنا نجی مشن بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج کے خلاف مبینہ طور پر پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو نہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گرفتار، صرف ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیپ ٹاپ اور فون کے ذریعے معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ لیکن اپنی پریس کانفرنس میں چودھری نثار، جن کا کہنا ہے کہ یہ سب قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے، اگر معلومات جمع کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہی طریقہ کار رہ گیا ہے؟ اور پھر FIA کا انسداد دہشت گردی محکمہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کام؟ سائبر کرائم کا محکمہ کیوں نہیں؟ اور ان پوسٹ سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ یہ درست ہے کہ کچھ سالوں سے سوشل میڈیا کو سیاسی مقاصد کے لیے بیانیے کی جنگ کا میدان بنا دیا گیا ہے، لیکن جب صرف 17% پاکستانی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی پہنچ تو بہت ہی محدود نہیں؟ اس کے علاوہ ہم نظر ڈالیں گے انتخابی اصلاحات پر، کہاں تک پہنچے، تاخیر کیوں، اور متنازع فارم 14 کا کیا بنا۔ نیوز وائز نے خصوصی دستاویزات حاصل کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتخابی عمل مزید پیچیدہ بنتا جا رہا ہے۔ اور برطانوی شہر مانچسٹر پر شدت پسند حملہ یہ یاد دلاتا ہے کہ یورپ بھی شدت پسندی کی آگ میں جل رہا ہے۔ مانچسٹر پر یہ حملہ لندن میں 7 جولائی 2005 کے بعد برطانیہ میں سب سے بڑا دہشت گرد واقعہ ہے۔ اس سے پہلے مارچ میں مرکزی لندن میں پارلیمان کے قریب ایک اور حملہ بھی پیش آیا تھا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ برطانیہ میں اگلے ماہ عام انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ کیا یہ حملہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہوائی اڈوں اور عوامی جگہوں پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت آئیں گے؟ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مگر ایک مادت پدر سوشل میڈیا بھی کسی مہذب جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول ہے، جہاں ہم اپنی سیکیورٹی کی جنگ، اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے پاکستانی کی فوج، پاکستان کی سول آرم فورسز، پولیس اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں، اور دوسری طرف اس قسم کی تضحیق آمیز پوسٹ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلے چند دنوں میں 27 IDs آئیڈینٹیفائی ہوئی، ان میں سے 8 اشخاص کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جنہوں نے چند یہ IDs پوسٹ کی تھی۔ ان میں 6 کو انٹرویو کیا گیا، بقیہ سے ابھی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ میرے لیے حیران کنی نہیں تھا، پریشان کنی تھا۔ یہ تو تھی وزیر داخلہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں۔ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی، جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ اسامہ، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، پروگرام میں آنے کا۔ پہلے تو چودھری نثار کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے یہ قانونی ہے، قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، حکومت کو چاہیے اور چودھری نثار صاحب کو چاہیے کہ پہلے ہمیں بتائیں کہ کس قانون کے تحت لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت لوگوں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں۔ نہ تو سائبر کرائم بل میں اس کا کوئی کلاز ہے جو کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح ہراساں کر سکتے ہیں، انہیں فون کر سکتے ہیں، انہیں دفتر میں بلا سکتے ہیں، ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور نہ تو کسی اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ تو ان کا صرف یہ کہنا کہ یہ قانونی طور پہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے نا کہ اگر یہ قانونی طریقہ ہے تو کون سا قانون ہے۔ جتنے بھی قانون کے ماہرین ہیں ان کے سامنے تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ لوگوں کو ان کی اظہار رائے کا حق ان سے چھین لے۔ جن کارکنان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک بلینک FIR ہے اور اس پر نام پھر بعد میں بھرے جا رہے ہیں۔
बिल्कुल, और ये देखें बिल्कुल कानूनी तरीका नहीं है। ब्लैंक एफआईआर के तहत आप किस तरह वारंट, क्या इन्हें वारंट दिखाए जा रहे हैं कि इनको जो है अगर ये लोग उठा रहे हैं तो वारंट के बगैर किस तरह उठा सकते हैं किसी को। तो इसलिए ये बिल्कुल जमहूरी हुकूमत का काम बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आमरीत का काम होता है। जो मुशर्रफ के ज़माने में होता था, ज़िया उल हक के ज़माने में होता था, वो नवाज शरीफ एक इलेक्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके हुकूमत में इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दो फेसबुक पे या ट्विटर पे कुछ पोस्ट से किसका जो है क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। खैबर एजेंसी में, कुरम एजेंसी में रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे लोगों के अल्फाज से डर रहे हैं, ये क्यों? लेकिन ये वजारत दाखिला तो का काम तो नहीं है। चौधरी निसार ने अपना मिशन तो बना लिया है, लेकिन ये तो काम, अगर रेगुलेशन की हम बात करें, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत का काम है। बल्कि रेगुलेशन तो पीटीए के एम्बिट में आता है, मिनिस्ट्री के एम्बिट में नहीं आता। लेकिन हमें रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आइन अगर आप देखें तो आर्टिकल 19 हमें इज़हार राय का पूरा हक देता है, और उसमें जो हक दिया गया है वो जो शहरी पाकिस्तानी अपना हक इस्तेमाल करते हैं, जो तनकीद करते हैं हुकूमत के लिए, ये हुकूमत के लिए अच्छी बात है। हुकूमत को अगले इलेक्शन में पता होना चाहिए कि इस बात पे हम पे तनकीद हो रही है और अगली पॉलिसी इनकी बेहतर होनी चाहिए, इनके मैनिफेस्टो में डालना चाहिए जो तनकीद इनको लोगों की तरफ से मिलती है, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस जगह इस्तेमाल करने के बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्रैक डाउन कर रहे हैं, और इस क्रैक डाउन से हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया और मीडिया की कितनी ताकत है और लोगों की कितनी ताकत है, तो लोगों को आप खामोश नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि मिसाल के तौर पर जब साइबर क्राइम जो कानून है, या अगर आइन को देखें, ये तो लिखा हुआ है कि फ़ौज सलामती को ख़तरा या ऐसे इदारों को कि हम तस्दीक नहीं कर सकते, तो कुछ तो लिमिट्स हैं, कुछ तो रेड लाइंस हैं कानून में भी। जी, अगर आप कानून में देखें, अगर एक ट्वीट हो कि फ़ौज ने या हुकूमत ने ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, इससे फ़ौज को या इतनी मजबूत फ़ौज को, इतनी मजबूत हुकूमत को क्या ख़तरा आता है। तो ये जो पूरा जो हुकूमत एक नैरेटिव आगे कर रही है कि सोशल मीडिया पे तनकीद करने से हुकूमत गिर जाएगी, इस तरह कहीं नहीं होता है, और ना तो इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को या FIA को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। तो जो ये क्रैक डाउन हो रहा है, ये सिर्फ एक सहाफ़ी उसमें शामिल हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुबैना तौर पर जो उसको फ़रोग़ दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान भी शामिल हैं, तो कुछ सियासी रंग भी तो है इसमें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये लोगों की ओपिनियंस है, और ये इनकी जो राय है इनकी, उसका वो इजहार कर रहे हैं। तो राय को प्रोपेगेंडा बोलना हुकूमत का एक ये टैक्टिक है, और इस टैक्टिक को हमें बिल्कुल जो है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें बताना चाहिए हुकूमत को कि ये प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, ये लोग तनकीद कर रहे हैं जो हर जमहूरी माशरे में होती है। हम ना तो बादशाह की हुकूमत में रह रहे हैं, ना आमरीत में रह रहे हैं। अच्छा, एक जो तजवीज़ चौधरी निसार ने पेश की थी वो ये थी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ताकि वो अनोनिमस ना रहें, यानी कि बग़ैर किसी नाम के या आइडेंटिटी की शनाख्त के ना रहें, वो सेल फ़ोन नंबर्स के साथ उनको मुंसलिक किया जाए। तो ये भी हुकूमत का तो ये कर नहीं सकती। देखें, सबसे पहले तो हुकूमत ये किस तरह करेगी, दूसरा अकाउंट 1 मिनट में बन सकता है, तो लोगों जो हुकूमत के पास अकाउंट होगा उसकी जगह कोई और अकाउंट कोई बना देगा, तो ये तो कोई इफेक्टिव पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों की प्राइवेसी की भी ज़रा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे सिक्योरिटी के मसले आ रहे हैं माशरे में, लेकिन इस वजह से हमें लोगों की प्राइवेसी और ज़ाती जो उनके राइट्स हैं, जिनको इनके हकूक़ हैं, उनको भी माइंड में रखना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको रिस्पेक्ट करें। कि अगर हम लोगों को कहेंगे कि अपने लैपटॉप भी हुकूमत को दो, फ़ोन भी दो, पासवर्ड भी दो, तो फिर हुकूमत के पास तो सब कुछ रह जाएगी। तो हुकूमत को याद रखना चाहिए कि हुकूमत हमारे पाकिस्तानी शहरियों के टैक्सों से चलती है और पाकिस्तानी शहरियों के वोट से आती है। तो हमारे वोट और हमारे टैक्स के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती, जिसका ये मतलब है कि हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी है, सिटीजन्स की और शहरियों की प्रॉपर्टी है। तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए सिटीजन्स को। हुकूमत को ये नहीं करना है कि शहरियों से सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। उसामा, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद करेंगे इंतखाबी इस्लाहात की और फॉर्म 14 की।
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात में नए तजर्बे करने जा रहा है। पिछले इलेक्शन में गायब हो जाने वाले फॉर्म 14 आइंदा से पक्के ही गायब हो जाएंगे। 2018 के इलेक्शन में फॉर्म 14 नए नाम के साथ सामने आएंगे, जबकि फॉर्म 17 को भी नया नाम दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की ये इस खुसूसी रिपोर्ट में। 2013 के आम इंतखाबात, हर तरफ से धांधली का शोर उठा, इल्जाम लगा आरओज पर, फिर मामला गया जुडिशल कमीशन में और किस्सा चला फॉर्म नंबर 14 का। फॉर्म नंबर 14 में किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पड़ने वाले कुल वोटों का नतीजा होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है। 50 से जायद हलकों से फॉर्म 14 गायब पाए गए। तहम इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में किसी भी कोताही की तरदीद करता नजर आया। डॉन न्यूज को दस्तयाब मालूमात और दस्तावेजात के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन इस सारे चक्कर से निकलने के लिए एक नया तजर्बा करने जा रहा है। पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 2018 के आम इंतखाबात में फॉर्म 14 गायब होकर स्टेटमेंट ऑफ काउंट की बजाय रिजल्ट ऑफ काउंट के नाम से सामने आएंगे। पहले फॉर्म 14 पोलिंग स्टेशन पर पड़ने वाले वोटों के नताइज बताता था और इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता था। तहम आइंदा इंतखाबात में फॉर्म 14 का नाम फॉर्म 17 से बदला जा रहा है। फॉर्म 17 पर पूरे हल्के में पड़ने वाले वोटों का हतमी नतीजा दर्ज होता था और उसे रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता था। तहम आइंदा इंतखाबात में फॉर्म 17 का नाम रिजल्ट ऑफ काउंट की बजाय फाइनल रिजल्ट होगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 17 फाइनल रिजल्ट की सूरत में जारी करेगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स की तादाद भी 21 से बढ़ाकर 50 से जायद करने की तैयारियां कर रखी हैं। तहम इंतखाबी कानून में तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद लागू होगी। इंतखाबी माहिरीन का ख्याल है कि इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स के नाम बदलने और उनकी तादाद बढ़ाने से इस सारे अमल में पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। प्रोग्राम न्यूज वाइज के लिए फयाज राजा, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और सरबराह हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब वक्त देने का। कंवर साहब, फॉर्म 14, फॉर्म 17, लोगों को समझाइए कि ये इतनी अहम तब्दीली क्यों होगी। मुझे बड़ी हैरानगी की बात है कि जब हमारी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी वो एक सही एक इंतखाबी तौर पर इस्लाहात करने की बजाय ये एक बहुत ही मामूली किस्म के ऐसे मसाइल पे पूरी कौम को उलझा दिया है, इससे कि आइंदा इंतखाबात की धांधली, बेकायदगी, बेजाबतगी की राह में कोई भी सदे बाब करने की रास्ता नहीं दिखाया। ये महज अब ये फार्म 14, 16, 17 इसके चक्रों में जो कौम को या वोटर हजरात को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या पोलिंग कमीशन के जो बनेंगे उनके मामले में बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। अब ये काफ़ी अरसों से एक फार्म 14 जो है, ये जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तो फार्म 14 है। उस फार्म 14 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना पूरा रिजल्ट जो है वो काउंट करके वो उसकी एक कापी दे देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को, इलेक्शन एजेंट को, या अगर कैंडिडेट खड़ा है उसको दे देते हैं, और एक उसको बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर लगा देते हैं ताकि मीडिया भी चेक कर ले, देख लें और इसकी एक खास अथेंटिकेटिव सुने। अब उसी बेस पर फार्म 14 की बेस पर जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है तो वो फार्म 16 तैयार करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फार्म 16 है। अच्छा, आगे 17 आएगा। ठीक है, इसका आप इशारा कर रही हैं। उसमें हो गया फार्म 16 में होता है कि पूरे पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट, जितने भी अगर 270 या 260 पोलिंग स्टेशन है उसका पूरा रिजल्ट आता है फार्म 16 पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फार्म 16 की समरी बनती है फार्म 17। इसमें होता है कि जो कैंडिडेट कामयाब हुआ या उसके नीचे जितने भी नाकाम हो गए उन सब की बाकायदा एक काउंट हो जाता है और वो होता है बिल्कुल ठीक है, उसको आप फाइनल रिजल्ट भी कह सकते हैं। उस फार्म 17 की बेस पर और फार्म 16 दोनों की बेस बनाकर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन करता है। अब यहाँ लोगों को उलझाया जा रहा है। एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को हमने बार बार मैंने लिखा जैसे आपने मेरी नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का जिक्र किया है, हमने बाकायदा हिसाब डार को ज़ैद हामिद साहब को बेशुमार तजावीज़ भिजवाई कि आपके जो इंटरनेशनल NGO हैं उनके जरगलाल ना बने। ये जो आपने जो टर्मिनोलॉजी बताई है ये हमारी अमेरिका की IFES ने दिया, NDI ने दिया, ये बाकायदा उनकी तजवीज़ों पर ये अमल दरामद कर रहे हैं। इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, पेचीदगी पैदा होगी। पेचीदगी पैदा होगी क्योंकि आपने ज़ाहिर है अपने पोलिंग एजेंट्स को आपने तरबियत देनी होती है और ये भी कि ये जो सारा तरीक़ाकार है इलेक्शन से 6 माह कबल पूरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक समरी भिजवाई है गवर्नमेंट को
کہ بھی آپ ہمیں جو الیکشن ایکٹ جو ہے 217 اس سے آپ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہمیں بھجوائیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم باقاعدہ آگے ٹریننگ کا انتظام کر سکیں. اب جو موجودہ جو یہ چکروں پڑ گئے فارم 16-17 اور ایک اور انہوں نے بڑی بات کی آپ کے پروگرام میں تو اس کا ذکر شاید کم ہی آئے گا لیکن آگے چل کے آپ کر لیں. اب یہ نامینیشن فارم تبدیل کر رہے ہیں. اچھا. اب نامینیشن فارم تبدیل کرنے پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے قانون ہمارے صوابدید پہ آتا ہے, یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی ہے گورنمنٹ پہ نہیں آتا. لیکن گورنمنٹ نے آج سنا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی تجویز کو مسترد کر دیا. وہ بات کیا ہے؟ فارم 16 جو ہمارا یہ جو بات ختم ہو گئی ظاہر ہے یہ فارم 16, 17, 14, 15 ایک اور بڑی بات ہے. فارم 14 جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر کا جی. اور فارم 15 ہوتا ہے کہ رزلٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بیلٹ پیپر کے. دونوں فارم بڑے امپارٹنٹ ہیں. ابھی جو بنا تھا عمران خان کے معاملات میں جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو فارم 14 ڈھونڈتے رہے وہی غائب ہوئے تھے اور وہ نظر نہیں آئے. اب ہم نے تجویز یہ دی تھی اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ یہ کریں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جو فارم 16-17 جاتا ہے جس کی بنیاد پر باقاعدہ نوٹیفکیشن کیے جاتے ہیں تو آپ فارم 14 میں ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہو, کسی کو طلب کرنا چاہیں تو وہیں ای سی پی سے منگا لیں اور شفافیت ظاہر ہے. اور ایک میں نے یہ تجویز دی تھی ان کو بڑے آسان طریقہ, میں نے کہا آپ الیکشن ٹریبونل سے تمام معاملات سے بچ جائیں گے. اب ہمارا جو قانون کیا کہتا ہے اس پر کوئی بھی کام نہیں کیا ہمارے زاہد حامد صاحب نے. بالکل. اب کیونکہ میں یہاں سوال جو کرنا چاہ رہی تھی کہ اب دسمبر میں جو مسودہ تھا الیکشن قانون کا وہ پیش ہوا تھا, پارلیمانی کمیٹی کو گیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک مئی آ گیا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کب آگے اس پہ کام ہوگا. اس پہ یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات اسحاق ڈار صاحب نے کل کہا تھا کہ ہم بجٹ سیشن سے پہلے اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں گے, لیکن اس پہ بہت زیادہ دھواں دار تقریریں بھی ہوں گی, اسٹینڈنگ کمیٹی بھی آئے گی. لیکن جب بڑا آسان طریقہ ہے, ہماری گورنمنٹ کی نیت صاف نہیں ہے. پہلی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی کمزور ہیں, کوئی نہ کوئی پیچیدگیت پیدا کریں, جیسے فارم 14 پہ آپ آ گئی ہیں, 16 کا نام بدل رہے ہیں, اس طرح کے بدل رہے ہیں. اس پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے تجویز دی تھی بڑا آسان طریقہ روکنے کے لیے ریگنگ, کہ اب ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر فزیکل ویریفیکیشن کرے گا. فزیکل لفظ ہے فزیکل ویریفیکیشن, لیکن اب ہوتا کیا ہے وہ فارم 14 کی بنیاد پر فارم 16 بنا دیتے ہیں. وہ فزیکل ویریفیکیشن نہیں ہوتی. اگر وہاں اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے اور تمام پولنگ ایجنٹس میں کینڈیڈیٹ بھی سامنے کھڑا ہے, اس کے سامنے اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے جو پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ لے کے آیا ہے تو سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں. جو ریگنگ ہوتی ہے, جو دھاندلی ہوتی ہے پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کے درمیان فاصلہ ہے 30 کلومیٹر کا, اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہو جائے گی. کنور دلشاد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپڈیٹ لیں گے مانچسٹر میں شدت پسند حملے کی. مانچسٹر میں ایک پاپ سنگر کے کانسرٹ پر حملہ, 22 افراد ہلاک جن میں بچے بھی شامل. تازہ اپڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب راجہ جو چلڈرنز ہاسپٹل مانچسٹر میں ہیں. ثاقب بتا سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اب تک کیا ہوا؟ امبر صورتحال جو ہے وہ جب سے کل رات برطانوی ٹائم کے مطابق تقریباً 10:35 یا 30 پر یہ واقعہ ہوا. ارینا کانسرٹ ہال ہے جہاں بہت بڑا یہ اسٹیڈیم لائک ہے لیکن کورڈ ہے. ایک اسٹیڈیم کی گنجائش کے مطابق یہاں پہ 21,000 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک امریکن سنگر ہیں, بچوں کی سنگر ہیں, یعنی کہ بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں, ینگ سنگر ہے, اس کا کانسرٹ تھا اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں موجود تھی اس وقت. اور جب یہ ختم ہونے والا تھا اور وہ آخری لمحات تھے تو جو ہی لوگ باہر نکلنے لگے تو آؤٹ سائڈ جہاں باکس آفس ہوتا ہے وہاں پر ایک دھماکہ ہو گیا. پہلے تو مختلف افواہیں چلتی رہیں کہ یہ شاید گیس ایکسپلوژن ہوگا, یہ ہوگا, لیکن کافی دیر کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد پولیس کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک تھا اور بعد میں یہ بھی کنفرم کیا گیا کہ یہ سوسائڈ اٹیک. اچھا, خودکش حملہ تھا. 22 لوگوں کی جو ہے اس وقت ہلاکت بتائی گئی اور تقریباً 60 سے 65 کے قریب لوگ زخمی بتائے گئے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ وہاں آفیشل وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 160 کے قریب لوگ ہیں, یا 120
जख्मी हुए थे। ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनकी तरफ से ये फिगर बताई गई थी, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर तहकीकाती इदारे या सिक्योरिटी इदारे कोई फिगर जारी ना करें उस वक्त तक उसे हतमी नहीं कहा जाता। तो इसे भी आप एक इबाम कह लें। अभी तक जख्मियों में क्रिटिकल है कुछ लोग और ज्यादातर बच्चे हैं। जो हलाकतें हुई हैं उनमें भी बच्चे शामिल हैं। जो पुलिस चीफ हैं यहाँ के इयन हॉपकिन, उन्होंने भी यही बताया कि हलाकतों में बच्चे शामिल हैं, लेकिन तफसीलात हम नहीं बता सकते। जी, इसमें सूरत हाल अभी कुछ इसमें बीच में ये भी था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लापता भी हैं। बिल्कुल लापता हैं। अभी मैं स्पॉट से ही आ रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं जिनको लाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंची हैं थ्रीसा में। अभी अभी यहाँ पर उनकी आमद हुई है, अंदर हैं वो हॉस्पिटल के, और हम बाहर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो बाहर आकर मीडिया से बात करेंगी। सूरत हाल जो है अभी तक क्लियर नहीं है। एरिना को, कॉन्सर्ट हॉल को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। रेड किया है पुलिस ने आज, चॉल्टन का इलाका है मैनचेस्टर का, और बताया जा रहा है कि शायद किसी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अनकन्फर्म्ड है। मुख्तलिफ इतलात हैं कि कमांडोज ने रेड भी किया और असला के साथ उन्होंने बाकायदा रेड किया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। जहाँ ये बरतानवी मीडिया क्लेम कर रहा है, उनका दावा है कि यहाँ पर इसको इस तंजीम ने जो है इस्लामिक स्टेट की, उसने इसको कबूल किया है जिम्मेदारी को। लेकिन इंतजामिया या हुकाम, प्राइम मिनिस्टर ने आज कोबरा मीटिंग कॉल की हुई थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। उसमें काफी उन्होंने फैसले किए, काफी उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की, शॉर्ट स्टेटमेंट्स जारी की, लेकिन उसमें ये क्लियरली नहीं कहा गया कि किसी ने जिम्मेदारी कबूल की। अब से कोई 1 घंटा पहले बरतानवी मीडिया का क्लेम था कि इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अलबत्ता अब प्राइम मिनिस्टर चूंकि यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हो सकता है कि वो बाहर निकल के मीडिया को कोई अपडेट जी। अब वजीर आजम तो वहाँ मौजूद हैं बरतानिया की, लेकिन इंतखाबात भी होने लगे हैं अगले माह ही, तो आपको लगता है कि कुछ असर होगा इंतखाबी मुहिम पर या इंतखाबात पर इस हमले का? अंबर, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर किसी पार्टी पर या इंतखाबात पर होगा। हाँ, एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह ओपनली एक्टिविटीज होती है। चूंकि 2007 के बाद ये पहला दूसरा बड़ा वाकया है जो बरतानिया की तारीख में 2005 के बाद बड़ा वाकया है दूसरा, और इसको बहुत सेंसिटिवली देखा जा रहा है। लिहाजा हो सकता है कि एक्टिविटीज कम कर दी जाएं, लेकिन जाहिर है किसी पार्टी को, किसी मखसूस पार्टी को उससे नुकसान या फायदा नहीं होने वाला। अलबत्ता कम्युनिटीज के दरमियान एक फासला जो है वो कुछ अरसे के लिए शायद बढ़ जाए, जिसकी एक खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद जो कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान कोई नफरत पैदा ना हो, जिससे ज्यादा नुकसान होने का खतरा हो सकता है। ठीक है। अगले माह से चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है, तो इस किस्म के जो बड़े ज़ाहिर है इवेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी। कुछ माजी में भी ऐसा आज जो आज मीटिंग हुई है, कोबरा मीटिंग, उसमें जो अहम फैसले हुए हैं, अभी तक उनकी डिटेल जारी नहीं हुई, लेकिन बाज़ इतलात ये हैं कि उसमें अब सिक्योरिटी मामलात को रीचेक किया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2005 के बाद ये बहुत बड़ा वाकया है, और इसमें अब सिक्योरिटी को रीशेड्यूल किया जाएगा। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल सर पे है। मैनचेस्टर में भी एक मैच है, गालिबन शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जाहिर है अब इस वाकये के बाद असर तो होगा उसका, और सिक्योरिटी को रीशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन एज सच अभी तक, क्योंकि अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू का और ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, लिहाजा कोई बात इतनी खुलकर गवर्नमेंट की तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रही। माजी में ये भी देखा है जब यूरोपी ममालिक या अमेरिका या कहीं और ऐसा दहशतगर्द वाक़या होता है, तो एक इस्लामोफोबिया, मुसलमान या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक सेंटिमेंट है वो ज़्यादा उरूज पे चढ़ जाता है, परवान चढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी बातें मीडिया में, सोशल मीडिया पर सामने आई हैं? देखिए, एक वाकया तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसको हमने ज़्यादा प्ले नहीं किया क्योंकि उससे नफरत फैलने का खतरा होता है। और जाहिर है हमें भी, मीडिया को भी और बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर नफरत की बजाय हम उसे काम डाउन रखें तो हो सकता है कि दोनों कम्युनिटीज़ का फ़ायदा हो। एक वाकया ज़रूर हुआ है यहाँ पर, ओल्डम का एक इलाका है, मस्जिद के दरवाजे पर जो है किसी ने आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको काम डाउन रखा गया। उसको ना तो मीडिया में इतना उछाला गया, पुलिस वहां पहुंची, लोगों की तलाश भी जारी है और अपील भी की जा रही है लोगों से कि आप काम डाउन रहें। मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसने भी अपील की है, उनके जो उलमा और जो बड़े
बुजुर्ग हैं यहाँ के, उन्होंने अपील की है तमाम अपने कम्युनिटीज़ को कि हम मिलजुल कर वी स्टैंड टुगेदर का एक स्लोगन जो है वो निकाला गया है। आज सुबह से चल रहा है सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पर कि वी स्टैंड टुगेदर, और आज शाम को एक विजिल भी रखा गया है जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ को मदऊ किया गया है और वो जमा भी होंगे शाम को। साकिब, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से दहशत गर्दी के ऐसे वाक़यात जो है उनकी कवरेज देता है और जो बरतानवी मीडिया होती है वो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या फ़र्क है? क्योंकि आप ज़ाहिर अल्फाज में बहुत मोहतात रहे हैं अभी तक, हमारे मीडिया में तो ऐसे कम ही नज़र आता है। देखिए, ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिस की बात होती है। यहाँ पर चूंकि एक तस्वर ऐसा है कि मामलात को बहुत ज़्यादा सनसनी के साथ पेश नहीं किया जाता, और चूंकि यहाँ पर एक और बहुत सख्ती से जिस चीज़ का नोटिस किया जाता है वो ये है कि जब तक हुकाम की तरफ से कोई बात कंफर्म ना हो तब तक आप उसको ऑन एयर भी नहीं कर सकते या आप उसको ओपनली कह भी नहीं सकते, और अगर खुदा ना खास्ता आपने ये गलती कर दी तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, उसको माफ़ नहीं किया जाता। दूसरी बात, मुझे आज खुद एक बड़ी हैरानगी हुई कि मैं सुबह के वक्त जब यहाँ के 6 बज रहे थे, सहरी का टाइम था सुबह का, तो मैं एक हॉस्पिटल गया, वहाँ पे कुछ बच्चों को ट्रीटमेंट हो रही थी, तो हम लोगों ने जब कैमरा निकाल कर कवर करने की कोशिश की तो वहाँ से पहले एक इंटरनेशनल मीडिया की नुमाइंदा और उनकी DSNG वगैरह मौजूद थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों कवरेज नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पर 15 बच्चे हैं, 15 जख्मी हैं जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, और हम लोग तब तक नहीं दे सकते जब तक वो 16 ना हो। ये लॉजिक वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, अलबत्ता मैं हैरान जरूर हुआ कि ये क्या मंतक है कि अगर 15 हैं तो नहीं दे सकते और 16 हैं तो दे सकते हैं। बहरहाल उनको कोई रूल होगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो मीडिया की। ऐसे मामलात भी इस मुल्क में होते हैं। ठीक है साकिब राजा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे चीन। वेलकम बैक टू द शो। चीनियों के देश में एक अनोखा गांव, इस मुनफरद गांव में 100 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले अफराद की तादाद 100 से भी ज़्यादा है। तवील उम्री का राज है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे दाएं बाएं अगर कोई शख्स 100 साल की उम्र का दावा करने लगे तो यार लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। मगर चीन के एक मुनफरिद और अनोखे गांव में एक दो नहीं पूरे 100 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें 100 साल से जायद हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी और शुगर। चीन के गांव बामा में लोग इन बीमारियों से नावाकिफ हैं, और वाकिफ हों भी क्यों जनाब के 3.25 लाख आबादी वाले इस गांव में औसत उम्र ही 75 से 80 साल है, और 100 साल वाले बुढ़े भी दनदनाते फिरते हैं। इस मुनफरिद और अनोखे गांव के बासियों की तवील उम्री की सबसे बड़ी वजह यहाँ का कुदरती माहौल और साफ सुथरी ताजा हवा है। गांव के लोगों से पूछो कि अरे भाई राज क्या है जो सेंचुरियों पे सेंचुरी बनाते जा रहे हो, तो बताते हैं कि वो सिर्फ वही खाते हैं जो वो खुद उगाते हैं। अब आप भी कहीं उम्र की सेंचुरी मुकम्मल करने इस गांव ना निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ के बासी टूरिस्ट के सख्त खिलाफ हैं और कहते हैं कि मोहतरम जनाब हमारे गांव से दूर ही रहें, आप क्यों हमारा माहौल खराब करने और आलूदगी बढ़ाने यहाँ आ जाते हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले प्रोग्राम के आखिर में आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें ये फैसला करना मुश्किल है कि ये करतबबाज जगलिंग कर रहा है या पियानो पर सुर की धुनें बिखेर रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।